মুগ আর মুসুর, সিপিএম আর বিজেপি এই দুজনকেই তুলোধনা করলেন কীর্তি আজাদ। তিনি বুঝিয়ে দিলেন, বাউন্সার না দিতে জানলে বল আকাশের দিকে উড়ে যায় আর মাঠের বাইরে চলে যায়। মুগ মুসুর, সিপিএম আর বিজেপিকে কীর্তি আজাদ তুলোধনা করলেন ভিরিঙ্গি কালীবাড়িতে পুজো দিতে গিয়ে, এবং এই ভিরিঙ্গি কালীবাড়িতে পুজো দিয়ে তিনি প্রচারও শুরু করলেন তৃণমূলের লোকসভার প্রার্থী কীর্তি আজাদ। প্রার্থী এখনো পর্যন্ত ঘোষণা হয়নি বিজেপির। আলুওয়ালিয়া নাকি অগ্নিমিত্রা না দিলীপ ঘোষ, না হলে একেবারে অন্য কেউ, তাই নিয়েই ধন্দে আছে বিজেপি। সিপিএমের মীনাক্ষীকে নামিয়ে পায়ে বল ধরে খেলবে নাকি পাস দিয়ে খেলবে খেলা, তাই নিয়েও ধন্দে আছে সিপিএম ক্যাডারেরা। এই অবস্থাতে বাউন্সার দিয়ে ওভারপিচ বল করে ফেলেছে কীর্তির ভাষায় দুই ভাই মুগ আর মুসুর, অর্থাৎ সিপিএম আর বিজেপি। বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসাবে 1983 বিশ্বকাপ জয়ী ভারতীয় দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য তথা দিল্লি ক্রিকেট বোর্ডের প্রাক্তন কর্তা কীর্তি আজাদের নাম ঘোষণার পরে মঙ্গলবার দুর্গাপুরের সুপ্রাচীন ভিরিঙ্গি কালী মন্দিরে পুজো দিয়ে কীর্তি আজাদ শুরু করলেন তার প্রচার। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রথমেই ওভার বাউন্ডারি হাঁকালেন। বিরোধী সিপিআইএম এবং বিজেপির তোলা অভিযোগের ফুলটস বলগুলিকে। দিল্লি ক্রিকেট বোর্ডের কর্তা থাকাকালীন কীর্তি আজাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব হয়েছিলেন বামেরাও। সেই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে কীর্তি আজাদ বললেন, সিপিআইএম এবং বিজেপি হলো মুগ আর মুসুরের ডাল। যদি এরা মায়ের দুধ খেয়ে থাকে তাহলে আমার এবং আমার পরিবারের বিরুদ্ধে 1 পয়সার দুর্নীতির প্রমাণ দিয়ে দেখা। মাননীয় অরুণ জেটলি আজ আর জীবিত নেই। দিল্লি ক্রিকেট বোর্ডের সরকারি কাগজে তা 4000 কোটি টাকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমি সরব হয়েছিলাম। বিরোধীরা তার বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই বহিরাগত প্রার্থী এই অভিযোগ তোলায় প্রাক্তন এই ভারতীয় ক্রিকেটার সপাটে স্ট্রেট ড্রাইভের ভঙ্গিমায় জানিয়ে দিলেন, খেলোয়াড়দের না কোনো জাতি না কোনো ধর্ম হয়। আমি খেলার সুবাদে বাংলায় বহুবারই এসেছি। ইন্টারস্টিল খেলতে এসেছি দুর্গাপুর বার্নপুরে, রঞ্জি ট্রফি খেলতে এসেছি ইডেনে। আমি যদি বহিরাগতই হয় তাহলে নরেন্দ্র মোদী গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তিনি কিভাবে বেনারসের প্রার্থী হলেন? তাকে বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী করার জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি ধন্যবাদ জানান। কীর্তি আজাদের বাবা ছিলেন বাংলা বিরোধী। এক্স হ্যান্ডেল এমন কথাই লিখেছেন ভারতীয় জনতা পার্টির মুখপাত্র অমিত মাল্লব্য। তার উত্তর দিতে গিয়ে কীর্তি আজাদ জানালেন, সারা দেশের সমস্ত প্রদেশে অমিত মাল্লব্য বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। এর আগে 15 বার তিনি বিভিন্ন জায়গায় ক্ষমা চেয়ে মুক্তি পেয়েছেন। অমিত মাল্লব্য একজন মানসিক রোগী। তাহলে আমার বাবার বিরুদ্ধে কোথাও এফআইআর বা কোনো অভিযোগ কেন নেই? আসলে বিজেপি ভয় পেয়েছে। নরেন্দ্র মোদীর গ্যারেন্টিকে এবারে চাপা দিয়ে দেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওয়ারেন্টি বল কটাক্ষ করে প্রাক্তন এই দাপুটে ব্যাটসম্যান। लखनऊ से भी लड़े, तब भारतीय जनता पार्टी के लिए वो बाहर के नहीं थे। अच्छा, उनको छोड़ दीजिए। नरेंद्र मोदी तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनका क्या मतलब था वाराणसी में? वो क्यों आए वाराणसी? वो अभी वाराणसी से लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? हम क्रिकेट खेले, तो चीफ मिनिस्टर ने कहा, हमारे बाबा थे, हम तो खेले वर्ल्ड कप लेकर के आए, तो क्या बंगाल के लोग खुश नहीं थे? हुए कि नहीं हुए थे? तो हम एक गाड़ी है, हमारा न जात है न कोई मजहब, गाड़ी का न जात होता है न मजहब होता है। हमको दुर्गापुर पहले ही आने का अवसर मिला। जब हम बोकारो स्टील में करते थे तो दुर्गापुर स्टील मैच की बात है, इसको भी है समय हमारे थे। हमका कोई भारी नहीं है, जिसको खेल से प्यार है। हम बंगाल के विरुद्ध भी खेलते थे रणजी ट्रॉफी दिल्ली से, तुम लोग हमको प्यार करता तुम्हें मारबो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सेवा के लिए आए हैं, पार्लियामेंट की से है, उस सेवा में दीदी जिस प्रकार काम करती है ना, उससे हम लोग सभी आज प्रत्येक व्यक्ति केवल टीएमसी का कार्यकर्ता नहीं, एक व्यक्ति दीदी सीधा अपने आप समझता है।
जैसे 1980 में दीदी को पहली बार मिले हम, भाई का भी नहीं, जैसे दीदी तो हवाई चप्पल पहनती थी, तब सादा कपड़ा पहनती थी, वैसी की वैसी प्रिय है। कोई लाभ वही पुराना गाड़ी में घूमते वैसे ही है, वैसे प्यार की है, वही जो जाता है जैसे आम लोग के घर में होता है वैसे। तो हम दुर्गापुर आए हैं, दीदी जिस प्रकार से एक सरल रूप से रहती है वैसी रहेंगे। आप देख लीजिए, हम बिना चट्टी का आएंगे, हम भी हमारे। लेकिन आपका कुंभ है दुर्गापुर वासी और पूरा बर्धमान। हमको पूरा विश्वास है, हमको पूरा विश्वास है कि यहाँ के लोग अपना समर्थन देंगे, हमको आशीर्वाद देंगे। हम पूरी दमखम के साथ ठोक करके आप दुर्गापुर बर्धमान की सरकार की जो न्याय कर रही है खिलाफ करेंगे। बाकी हमारे पास प्रदीप दाते हमारे एसोसिएशन में थे उस समय कुछ घूस वगैरह ऐसा हुआ था जिसके लिए आपको बर्खास्त किया गया था। ये लेफ्ट से लेके बाकी विरोधी लोग आपके खिलाफ उठा रहे हैं। ये तो आप ऐसा कीजिएगा, 15 मार्च 2015 कीर्ति आजाद का प्रेस देख लीजिएगा, जिसमें अब तो हमको नहीं बोलना चाहिए, अब तो स्वर्गीय हो गए, दिवंगत हो गए अरुण जेटली जी। मेरा कागज़ नहीं था, सरकारी कागज़ था, जिसमें 4000 करोड़ का घोटाला डीडीसी में था, जिसकी आवाज़ हम उठा रहे थे। और ये जो आपके सीपीएम वाले हैं और ये बीजेपी वाले हैं, ये मुंह और मसूर की दाल, हमने भ्रष्टाचार उजागर किया, हमको निकाल दिया। इनसे बोलो एक प्रमाण देकर आए, अगर इसने माँ का दूध पिया है ना, एक प्रमाण देकर आए, मेरे ऊपर, मेरे बाप के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर एक पैसे का घोटाले का कोई लेकर के आए तो हम समझेंगे। अमित मालव का ट्वीट किया है कि आपका पिताजी हिंदू बंगाली विरोधी थे और बंगाली को उन्होंने वहाँ से भेज दिया था, ऐसा कुछ संगीन ट्वीट किए और साधारण से आपका पिताजी का भी कंपेयर किया। आपको एक चीज़ बताइए, ये अमित मालविया क्या आदमी है, इसका तो नाम भी नहीं लेना चाहिए। देश भर में दर्जनों केस इसके ऊपर चल रहा है डिफेमेशन का, ये 15 जगह तो ये माफ़ी मांग चुका है। यह आदमी मानसिक रूप से असंतुलित हो गया है, मेंटली डिरेंज हो गया है। ये इसको मालूम नहीं है कि क्या बात कर रहा है, कोई सच्चाई नहीं है, कहीं कोई प्रमाण नहीं है, कहीं कोई केस नहीं है, कहीं कोई एफआईआर नहीं है, कहीं कोई कन्विक्शन नहीं है, कहीं कोई आवाज़ नहीं है। और यह आदमी अपनी सोच रखता है और उस सोच को रखकर कुछ भी किसी को बदनाम करता है। ये है भारतीय जनता पार्टी का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट। दीदी क्या बोली? दीदी बोली वो सौतेला व्यवहार करेगा, स्टेप मदरली ट्रीटमेंट देगा तो देगा, लेकिन हम जब यहाँ सरकार में हैं तो हम अपनी तरफ से 100 दिन का मेहनताना लोगों को देंगे। आशा देखिए, आंगनवाड़ी देखिए, डबल हो गया। लक्ष्मी भंडार देखिए किस प्रकार से 500 का 1000, 1000 का 1200 हो गया। एक सुनाएंगे हम यहाँ, तो मंत्री जी आपको बताएंगे। तो हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि अगर एक व्यक्ति है जो असली मायने में केवल राजनीति नहीं, लेकिन अपने राज्य के लोगों के प्रत्येक व्यक्ति को अपना परिवार समझती है। मोदी जी मणिपुर के लोगों को अपना परिवार नहीं समझते हैं, लेकिन दीदी समझती है और सबके लिए बराबर से करती है। इसलिए हम दुर्गापुर के अपने वर्तमान के लोगों से प्रणाम करते हैं, आप सबों से आशीर्वाद की कामना करते हैं। जिस प्रकार से दुश्मनों का हमने क्रिकेट के मैदान में छक्का छुड़ा दिया और 1983 में विश्व कप जीत लेकर के आए, उसी तरीके से आप लोगों की बात छाती ठोक कर हम पार्लियामेंट में कर सके, उसका आशीर्वाद हमको चाहिए। Whatever the Vidhan Sabhas, whatever the Kurds will decide, हमारा एम है कैसे बढ़ा सकते हैं, जो कि सरकार से जुड़ी हुई चीजें हैं। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इंडस्ट्री में स्टेट गवर्नमेंट का आवश्यकता है, बहुत परिश्रम गवर्नमेंट से पड़ते हैं, रेलवेज है, हवाई अड्डा है, फ्रांस का है, ये सारी चीजें हैं। सबसे अलग करेक्ट, हमको खेलकूद तो नहीं रहेगा, खिलाड़ी है। सबसे पहला ये रहेगा कि जो पैसा बंगाल का हिस्सा का, जिसमें खेलकूद का मैदान रहेगा, जिसमें एक चीज बनेगी, वह पैसा आएगा, तब हम लोग झगड़ा करके दुर्गा जो पैसा उधर से आएगा हम लोग लेंगे। तो प्रदीप दाता हैं वहाँ पर बैठे हुए, हम लोग आवाज उनके पास भी उठाएंगे और केंद्र भी उठाते रहेंगे। कार्यकर्ता बन के आज आप आए हैं दुर्गापुर तृणमूल कैंडिडेट बन के, क्या महसूस कर रहे हैं? हम धन्यवाद करेंगे दीदी का कि उन्होंने हमको अवसर दिया है।
विशेष रूप से अगर कोई भी संगठन खड़ा होता है तो उसके लिए जो ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता होता है, वर्कर होता है, वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और हम पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से जो ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, उन सबों का दीदी से सीधा जुड़ाव है। और सब जानते हैं कि दीदी अकेली हैं ऐसी जो देश के अंदर धर्मनिरपेक्षता, एकता, महिलाओं को सम्मान, युवाओं को सम्मान, SC, ST जितने भी लोग हैं, जब आप माँ, माटी, मानुष की बात करते हैं तो उसी में सब कुछ आता है। क्योंकि सृष्टि जगदम्बा ने रचा है और जगदम्बा माँ जो है वही है, प्रकृति है, सनातन धर्म प्रकृति है। तो जब आप माँ बोलते हैं तो माँ ही करुणा है, माँ ही ममता है, माँ ही प्यार है, माँ ही दूध है, माँ ही माटी है, माँ ही सब कुछ है। और जो उन्होंने अपना माँ के बारे में बोला, कार्यकर्ताओं को आप देखें, आप मिट्टी की बात करते हैं, इसी मिट्टी में जन्मे हैं, इसी मिट्टी में ख़त्म हो जाएंगे। तो इस मिट्टी से प्रेम करो जिस मिट्टी ने तुमको जन्म दिया है। और मानुष, मानुष में कौन? मानुष में हम सब, प्रत्येक व्यक्ति, हर एक इंसान, हर एक माँ, हर एक पिता, हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक बेटा, हर एक बेटी, ये है मानुष। उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। अगर हम लोग कहीं किसी ब्लड बैंक में जाते हैं, किसी को खून की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग अपना ग्रुप मिलाते हैं। ये नहीं मिलाते कि हिंदू का खून है या मुसलमान का खून है, फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है, शेड्यूल ट्राइब का है कि जो नहीं। तो इस मानुष की बात करती है दीदी कि हम सब उस खून से जुड़े हुए हैं एक साथ मनुष्य के लिए। इसलिए जो माँ की बात करती है, माटी और मानुष की बात दीदी करती हैं, वही लेकर आगे बढ़ते हैं। प्रदीप दा हमारे मंत्री हैं, हमको सदैव आपका आशीर्वाद मिला है। जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, महिला हमारे सेल से हैं, अध्यक्ष यहाँ पर हैं, यूथ के लोग हैं, पूरी टोटल टीम हमारे साथ है। विरोधी लोग बोल रहे हैं सीए लागू করেছে কেন্দ্রীয় সরকার এই सीए वोटिंग पोलराइजेशन के बारे में थोड़ा सीए के देखिए, बड़ा स्वाभाविक है यह, जब देखते हैं कि कहीं जीत नहीं पा रही भारतीय जनता पार्टी, तो मोदी जी का दिमाग चलना शुरू होता है। और जब मोदी जी का दिमाग चलता है तो उसको अनुपालन करने का कोशिश कौन करते हैं? अमित शाह जी प्रयास करते हैं। आज क्या किया? वही लोगों को बना रहे हैं। जब कभी इनसे पूछो, जब आप मोदी की गारंटी करते हैं, आप सीए का बात किया ना, इनसे पूछो कि आप सीए का बात करें, एनआरसी हम तो बाद में बात करेंगे। पहले ये बताओ कि जो 10 साल पहले मोदी का गारंटी 2 करोड़ नौकरी हर साल का था, 10 साल हो गया, 20 करोड़ होना चाहिए चाकरी की नहीं होना चाहिए? 2 मिला, 20 मिला। मोदी की गारंटी था कि हम 100 दिन में काला धन लेके आएंगे, 3650 दिन हो गया। 15-15 लाख रुपए देंगे, 15% मिला? नहीं मिला। गरीबी, इन सब चीज़ पर बात नहीं करेंगे, करेंगे हम सीए ला रहे हैं, एनआरसी ला रहे हैं, ऐसे ही ले आएंगे सीए एनआरसी। अरे उसका बजाते वो पास होगा, उसका बिल बनेगा, बिल बनने के बाद वो पार्लियामेंट में आएगा, पार्लियामेंट में आने के बाद वो पास होगा। ये कब सरकार में आएंगे? अब ये बताइए, आपको याद है ना, इन्होंने कहा था कि 2022 तक, सुनिए दादा, आप पूछा था 2022 तक हम सबके सिर पर छत देंगे, बोला था। आज क्या हो गया? 2024। फिर ये क्या बोले 2024 में? बोले कि 2047 में 2047 यानी 25 साल बाद। अब 25 साल बाद हम लोग में कितना लोग जिंदा रहेगा, कितना लोग मर जाएगा, पता ही नहीं। 1 मिनट। तो ये जो गारंटी है ना, इस गारंटी का कौन जवाब देगा? मेरे चाकरी का जवाब कौन देगा? महंगाई का जवाब कौन देगा? या जो 15-15 लाख आना था उसका क्या होगा? ये जो गैस सिलेंडर लेके हमारी बहन स्मृति ईरानी ऐसे डोलती थी ना माथा पे रख के, 400 रुपया, 1200 रुपया हो गया, खुद 800 रुपया बढ़ा दिया, 100 रुपया कम कर दिया, बोला कि देखो हम क्या कर रहे हैं। ये है मोदी की गारंटी। लेकिन मोदी की गारंटी पर भारी है ममता दीदी की वारंटी। जो वारंटी उन्होंने दिया, उनके साथ जो बंगाल के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, जो 4,60,000 करोड़ रुपया किसका है? आप लोग जो पत्रकार हैं, यहाँ बंगाल रहने वाले जो लोग हैं, यहाँ पर हम लोग जितने लोग खड़े हुए हैं, किसका पैसा है ये? आपका दिया हुआ जीएसटी है। आटा, दाल, चावल, पनीर, सब्जी, सब पर जीएसटी आपने दिया है। उसके अलावा आपको इनकम टैक्स लगा है। इनकम আছে এখন এর খুঁটিনাটি যতক্ষণ না পরিষ্কার হচ্ছে, আমাদের নেত্রী একেবারে এই খবর আসার সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা হওয়ার আগেই বলে দিয়েছেন আমাদের যে অন্তরাত্মার কথা, আমরা কোনো রকম বিভেদ বরদাস্ত করব না।
যারা এখানে নাগরিক আছেন তারা নাগরিক থাকবেন। তাদের যদি কোনো অনিশ্চয়তার ভেতর ঠেলে দেয়, মা মাটি মানুষের দল এবং সরকার গর্জে উঠবে। একটা গর্জন দেখেছেন, আমরা কোনো বিভাজন এই সমাজে হতে দেব না। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যারা এখানের নাগরিক হিসেবে আছেন, যারা ছিলেন, তারা সকলেই আমাদের সমানভাবে শ্রদ্ধার ব্যক্তি, তারা সকলেই আমাদের কাছ থেকে সমান। সে যে রাজনৈতিক দলের লোক হোক, সবাই নিশ্চয়ই, কেন আমাদের কোনো প্রকল্প কি রাজনৈতিক বিভাজনের ওপর নির্ভর করে? আমরা তো সর্বসাধারণের জন্য কাজ করি। সেই জন্য এই প্রতিশ্রুতি, এই মানসিকতা আমাদের নেত্রী, সেটা সর্বসাধারণ।